So vouching, what is vouching? Vouching is basically examining the evidence, right? Examining the evidence to ascertain the authenticity of entries in the books of accounts. This definition simply means कि vouching क्या होता है? Vouching basically evidences को देखना होता है. Evidences मतलब proofs को देखना होता है, सारे supporting proofs को देखना पड़ता है, जो कि ये बताता है कि जो भी हमने journal entries in the books of accounts करी हुई है, journal entries हो गई या जो भी हमने ledger accounts बनाए हुए हैं या जो भी हमने बैलेंस शीट में फिगर्स अपडेट किए हुए हैं, फिगर्स लिखे हुए हैं ड्यूरिंग दी क्लोजिंग ऑफ द ईयर, वो सारे फिगर्स सही में उतने वैल्यू पे स्टैंड करते हैं या फिर हमने कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया हुआ है. तो वाउचिंग बेसिकली इज कि सारी एविडेंसेस को एग्जामिन करना इन डिटेल बाय द ऑडिटर so that we can make sure the entries in the books of accounts are true. The entries in the books of accounts are true. Right? So vouching is basically concerned. Vouching is basically concerned as the inspection by the auditor. ये कौन करता है vouching? Auditor करता है. It is an inspection by the auditor of evidence. जो भी हमने साथ में supporting documents लगाए हैं regarding the transactions that we have done in the books of accounts, so that he can make sure all the entries, all the values that are appearing in the balance sheet are true. And he also has the proof for the same. Vouching is a technique used by an auditor to judge the truth of entries appearing in the books of accounts. Clear? Definition is clear to everybody? Basically, vouching क्या है? Vouching हम check करने का तरीका है auditor के द्वारा कि जो हमने journal entries और या जो भी हमने books of accounts में transactions दिखाए हैं, वो सारे सही हैं कि नहीं हैं. उनकी authenticity को check करता है, उनकी reliability को check करता है कि वो सारे transactions ट्रू है कि नहीं है, और वो अपनी फेयर वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं कि मैनिपुलेटेड वैल्यूज पे बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं. सो वाउचिंग इट इज अ टेक्निक और इट इज अ टूल by which auditor comes to knows about the values and their authenticity. Now there are two definitions, whichever you feel easy you can do that. Vouching means, yes beta. So that vouching is basically auditing of the journal entry. Beta, come again. Your voice is cracking. Vouching is basically the hello. Am I audible, ma'am? बेटा आपकी आवाज तो आती है बट बहुत इको करती है और बहुत क्रैक करती है, तो क्लियरली मैं सुन नहीं पाती हूँ. एक बार फिर से बोलिए. Vouching is basically auditing of journal entries, right, ma'am? जर्नल एंट्रीज का भी वेरिफिकेशन होता है, मतलब एक एक चीज का वेरिफिकेशन होता है. एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी होता है, कैश बुक का भी वेरिफिकेशन होता है, सबका होता है भाई. जब हम बैलेंस शीट में जो फिगर्स आते हैं वो हम किससे अराइव करते हैं? वो हम जर्नल के थ्रू ही तो अराइव करते हैं. सबसे पहले जर्नल, फिर डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, फिर कैश बुक बनती है. सो ये सबका वेरिफिकेशन करता है. अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सारे एसेट्स का वेरिफिकेशन होता है. राइट? अभी हम लोग आगे सब पढ़ेंगे बेटा. ओके बेटा. Now definition of vouching means testing the truth of items appearing in the books of original entry, or definition given by Dixie says it is an act of comparing entries in the books of accounts with documentary evidence in support thereof. Either of the definitions can be learned. According to me, J.R. Bartley Boy की definition ज़्यादा easy है. It means testing the truth of items appearing in the books of original entry. Now, what are the objectives of accounting? All the transactions which are connected with the business have been recorded in the books of accounts properly. Now, whatever transactions we do, at the back of the mind हमारी ये है कि हाँ हमको ये as an evidence भी show करने हैं, right? So we record it very carefully and very properly, keeping in mind कि हमको इनकी evidences भी देनी है, तो हम यहाँ पे manipulation नहीं कर सकते हैं. तो हम जो भी transaction record करते हैं वो बहुत ही carefully और properly करते हैं. Next, to verify that all transactions recorded in the books of accounts are supported by evidence. ये तो हमारा primary motive है कि हमको ये देखना है कि हम जो भी accounts में transactions record कर रहे हैं, they have the documentary evidence. What do they have? They have the documentary evidence. To verify that all transactions recorded in the books of accounts are supported by documentary evidence.
Next, the vouchers which support the entries are legally valid. Very important point from the viewpoint that they are authentic, addressed to the business and properly dated. अब जो भी vouchers, जो भी documents हम support में लगाते हैं अपने journal entries के बेटा, हमको उसकी legal validity देखनी है, हमको उसकी validity देखनी है. For example, पेटेंट्स हैं हमारे, राइट, कॉपीराइट्स हैं, तो इनकी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ एक्सपायरी होती है. डू यू ऑल अग्री? लाइफ टाइम नहीं होता है मैम ये? नहीं बेटा, लाइफ टाइम नहीं होता है, ये इनकी एक्सपायरी डेट होती है. जैसे हमने कोई सपोज करिए लैंड ली है, इनको फिर आपको कुछ पैसा देके रिन्यू कराना पड़ता है. तो हमको ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, हम ये देखें कि इसमें जो भी हमने लीगली डेट्स हैं वो सारी ऑथेंटिक हैं, राइट, और वो बिजनेस से ही रिलेटेड है. Then fourth point says to verify that no fraud or error has been committed. ये तो सबसे important चीज है कि हमने कभी भी कोई error of omission या कोई भी fraud नहीं किया है हमने अपनी books of accounts में. हम आपको different types of errors already unit 1 में बता चुके हैं. और fraud भी नहीं होना चाहिए, भले ही वो intentional है या unintentional है. तो जब हम vouching के objectives क्या है, basically जो auditor है वो ये देखता है कि कोई भी error और fraud भी नहीं किया हुआ है while passing the journal entries. Then the vouchers have been processed carefully through various stages of internal check system. Internal check system हम अपनी पिछले टर्न पे पढ़ चुके हैं. Internal check system क्या होता है बेटा? जहाँ पे auditing internal staff हर एक स्टेज पे करता रहता है, right? Which makes the work of auditor very easy. हम ये देखना चाहते हैं कि जब internal check system हो रहा था, उस समय जो vouchers हैं उनको भी सही से process किया गया है, right? Then while recording the transactions, whether distinction has been made between capital and revenue items, again an important point. Who can differentiate between capital and revenue items in terms of revenue also and in terms of expenditure also? कौन बता सकता है difference? What is the difference between capital expenditure and revenue expenditure? Can anyone answer? मैम ऐसे कह सकते हैं जो बड़े खर्चे हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं और जो छोटे मोटे बिल्कुल ठीक बात है. जो बड़े खर्चे होते हैं, the expenses that are done for a long run are known as capital expenses, and expenses that have been incurred for a very short period or for working capital management, they are called revenue expenditure, right? तो हमको ये differentiate बिल्कुल करके रखना चाहिए जब हम transactions का रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो capital revenue items हैं कि वो revenue expenditure वाले items हैं, right? And the last point, last objective of vouching says accuracy has been observed while totaling, carrying forward and recording an amount in the account. हमको ये देखना है कि हमने टोटल सारे अकाउंट्स का सही किया हुआ है, बैलेंसेस का कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल सही किया हुआ है, और रिकॉर्डिंग जो है वो भी हमने बिल्कुल सही तरीके से करी हुई है. तब वाउचिंग की डेफिनेशन आपको करनी है तो आप ये कर लीजिएगा, बाटली बोई की. Vouching means testing the truth of items appearing in the books of original entry. And simple definition, it is concerned with examining documentary evidence to ascertain the authenticity of entries in the books of accounts. It is an inspection by the auditor of evidence supporting the transactions made in the books. It is a technique used by auditor to judge the truth of entries appearing in the books of accounts. अभी तक सबको clear बेटा? Meaning and objectives of vouching. Is it clear to everybody? Yes ma'am. Okay. Now we move on to the next topic. इसमें तो मैंने सारे डाल रखे हैं, पर ये आपके में नहीं है. आपके में सिर्फ assets और liabilities का vouching है. देख रहे हैं? सब चीज की vouching हो रखी है. देखिए, purchase book की भी हो रखी है, purchase return की भी हो रखी है, sales return सबकी vouching होती है, right? But आपके उसमें सिलेबस में, आपके सिलेबस में verification है, assets and liabilities का verification है पूरा का पूरा. चलिए. अब what is verification? First we come to this point. What is verification? Verification means the procedures normally carried out at the year end to confirm the ownership, valuation and existence of items at the balance sheet date. देखिए कह रहा है वेरिफिकेशन क्या होता है. वेरीफाई मतलब क्या होता है? चेक करना. वेरीफाई मतलब क्या होता है बेटा? चेक करना. वेरिफिकेशन का एक सिंपल मीनिंग अगर हम आपको बताएं तो चेक, राइट? हाउ इज वेरिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम वाउचिंग? वाउचिंग कौन करता है? ऑडिटर. वाउचिंग कौन करता है बेटा?
ऑडिटर। और वेरिफिकेशन क्या है, हो सकता है ये कंपनी के अकाउंटेंट ने ही कर लिया है कि बस उसने चेक किया है कि जो भी हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस पूरे साल प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए हैं दे आर ऑल करेक्ट, ठीक है, उनकी ओनरशिप कंफर्म करी है, उनका वैल्यूएशन, उनका एग्जिस्टेंस कि बैलेंस शीट में वो सही तरीके से एग्जिस्ट करेंगी नहीं कर रहे हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें वेरिफिकेशन क्या मतलब है, प्रूविंग द ट्रुथ और कन्फर्मेशन, मतलब कि जो भी हमने एंट्रीज करी हैं वो सारी सही है कि नहीं करी है। एक इसमें स्पाइसर और पेगलर की डेफिनेशन दी हुई है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंप्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, राइट, वी आर इंक्वायरिंग दैट जो भी वो वैल्यूज उनकी अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में दे आर ऑल करेक्ट। ओनरशिप एंड टाइटल, उनका ओनरशिप किसको बिलोंग करता है, उनका टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन दी एसेट्स, कि अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है कहीं एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। सो वेरिफिकेशन बेसिकली इज टू चेक ऑल दी एसेट्स, उनकी वैल्यू चेक करना, सारे अकाउंट्स चेक करना, ओनरशिप चेक करना कि एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। तो वेरिफिकेशन ये होता है। अब हम लोग आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स। अब हम लोगों को करना है वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स। सबसे पहली बात देखिए आता है इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा, गुडविल, पेटेंट, Yes, ma'am. ट्रेडमार्क, Copyright. कॉपीराइट्स, Okay. ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो क्या क्या आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग, Machinery. फर्नीचर, फिक्चर्स, राइट। और फ्लोटिंग एसेट्स की बात करें तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड एंड सन्ड्री लेटर्स। सन्ड्री लेटर्स मींस इसमें दोनों चीजें आ सकती है, डेटर्स, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा। क्लियर बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए वेरिफिकेशन। अब गुडविल, किस चैप्टर में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते थे बेटा, partnership. When we do accounts for partnership, do we calculate goodwill or not? And goodwill calculation के methods क्या होते थे, super profit method, average profit method and capitalization method. So now first of all we are talking about intangible assets and their verification. सबसे पहली बात आती है goodwill की। When for example एक running business चल रहा है, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, हम गुडविल खरीदते हैं, बाकी एसेट्स के साथ साथ हम क्या खरीदते हैं, गुडविल भी खरीदते हैं, and we also make the payment for the same. Now in the notes it is written, where goodwill has been purchased along with the running business, the same should be verified from the agreement with the vendor showing the price paid for it. अब कह रहा है कि मान लीजिए कोई चलता हुआ बिजनेस है एंड उस बिजनेस को किसी ने खरीदा है। अब जब कोई बिजनेस खरीदेगा तो जाहिर सी बात है उसमें बाकी एसेट्स के साथ साथ वो गुडविल का भी पैसा देगा। तो अब वो चीज जो वेंडर को उसको दिखाना है कि उसने कितना प्राइस दिया है उस गुडविल के लिए, लेकिन जहां पर अमाउंट फिक्स नहीं है तो गुडविल कैसे निकलता है, इट इज द डिफरेंस, इट इज द अमाउंट फॉर ऑल द परचेज ऑफ बिजनेस ओवर द नेट एसेट्स टेकन ओवर। भाई मान लीजिए जब कोई बिजनेस लेते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, वी डेबिट ऑल द नेट एसेट्स, क्या करते हैं, नेट एसेट्स को डेबिट करते हैं, से यस। Yes, ma'am. एंड टू कैपिटल, बिजनेस हम एक बार खरीदते हैं तो रिपीट किसी कर का, दीजिए, सॉरी बेटा, हम एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा मैं ये कह रही हूँ जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं ना, मान लीजिए कोई रनिंग बिजनेस है एंड हम उस बिजनेस को खरीद रहे हैं तो उस Yes, केस ma'am, में asset account जर्नल, हाँ यही करते हैं, हाँ, नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन इसमें अब जो डिफरेंस आता है, वो जो डिफरेंस आता है वो कहाँ चला जाता है, गुडविल में। वो डिफरेंस कहाँ चला जाता है, नेट एसेट्स टू कैपिटल, एंट्री ये होती है। पर हो सकता है ये दोनों चीजें टैली ना करें, कैपिटल आपने पैसा ज्यादा दिया है, पैसा ज्यादा दिया तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होगा ये बैलेंसिंग फिगर किसके अंदर आता है, गुडविल। ये बैलेंसिंग फिगर किसके अंदर आता है, गुडविल। एम आई क्लियर। तो यही चीज देखो यहाँ पर लिखी हुई है, बट व्हेन द अमाउंट इज नॉट स्पेशली फिक्स्ड, आपने अमाउंट डिसाइड नहीं किया है तो उस केस में गुडविल क्या हो जाती है, अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस, अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस हो गया आपका ये कैपिटल, राइट, ओवर द नेट एसेट्स टेकन ओवर। उसमें से जब हम ये माइनस कर देंगे नेट एसेट्स तो हमारा निकल के आ जाएगा गुडविल। क्लियर बेटा। इसमें बता रहे हैं कि दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो जितने में हमने वो बिजनेस खरीदा है उसमें हमने गुडविल का जितना पैसा दिया हम क्लियरली वो उसको पर्चा दिखा दें अपने ऑडिटर को ताकि वो वेरीफाई कर ले। अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो
हम उसको ऐसे करके भी सेटिस्फाई करा सकते हैं कि जो गुडविल है हमने कैसे निकाली है, हमने निकाली है एज द डिफरेंस ओवर द परचेज ओवर द नेट एसेट्स टेकन ओवर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गुडविल कैसे निकलती है। गुडविल के 3 मेथड्स होते हैं, हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हैं। अगर आपको उन मेथड से गुडविल नहीं निकालनी आती है तो गुडविल ऐसे भी निकलती है। You all should know all this, being the students of BBA beta. Now it should be verified that the goodwill has been recorded in the books of accounts only when some consideration in money or equal to it has been paid. इसका मतलब कौन बताएगा मेरे को? What is consideration? सहमति। Something in return. क्या बेटा? Something in return. Something in return. Consideration is something in return. तो इसमें ये देखना चाहिए, ये वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए कि जो गुडविल हमको मिली है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कब मिली है। या तो हमने उसके बदले में मनी दिया है, either we have paid money in return for that or we have paid something other than money। ठीक है, हो सकता है हमने उसके बदले कुछ उसको अपने एसेट्स दे दिए, कुछ शेयर्स दे दिए। तो गुडविल का ये भी वेरिफिकेशन होना जरूरी है कि जो गुडविल हमारी बुक्स में अपीयर कर रही है वो कंसिडरेशन में है, either in consideration of money or something equal to it, right? Then next case, in case of partnership, the auditor should verify the changes made in the goodwill account from time to time on the provisions made in the partnership deed। बिल्कुल, ऑडिटर ये भी बहुत चीज केयरफुली ऑब्जर्व करता है, वेरीफाई करता है कि पार्टनरशिप में जब चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से गुडविल चेंज हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि जब पार्टनर्स हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो भी गुडविल चेंज होती है, नंबर 1। जब पार्टनर्स में किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तब गुडविल चेंज होती है, नंबर 2। जब पार्टनर में कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर होता है कोई पार्टनर तो भी गुडविल चेंज होती है। तो ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई इन ऑल द केसेस कि जो भी पार्टनरशिप में चेंजेस हुए हैं, राइट, अमंग द पार्टनर्स, उस केस में इनकी गुडविल भी चेंज हुई है कि नहीं हुई है। तो ये था पहले इंटैंजिबल एसेट गुडविल का वेरिफिकेशन। नेक्स्ट, तो वैल्यूएशन, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस अमाउंट्स रिटन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेटेंट्स। अच्छा, व्हाट आर पेटेंट्स बेटा, हु कैन टेल मी? Patents are the right given to हम इंडिविजुअल राइट्स किसी भी एक पर्सन को, जैसे मेडिसिन फार्मा कंपनीज के पास राइट्स होता है उसको और कोई और नहीं दे सकता। बेटा जो आपने मेडिकल और वो बताया ना, मैम तो डिफरेंस कॉपीराइट और पेटेंट में डिफरेंस क्या हुआ मैम? फिर हाँ वही मैं आप लोगों से पूछूं, फिर तो मैं बताऊंगी। पेटेंट्स देखो, ओमना शायद आपने आंसर दिया मेडिकल और फार्मा को नहीं। हाँ बताइए, आप बताइए। Intellectual property के exclusive rights। कह सकते हैं, थोड़ा और उसको वेरीफाई करिए, थोड़ा और उसको डिटेल में बताइए। ओमना जो आपने बताया बेटा, जो मेडिकल स्टोर वालों को, दैट तो वी कम वी कैन टॉक इन। हाँ बताइए। मैम पेटेंट्स होते हैं जैसे कि कोई रिसर्च हुई है और आप कराएंगे तो पेटेंट कराते हैं उसको। पेटेंट्स मतलब रिसर्च हुई है, मतलब हमने सपोज करिए हमने कोई एक ऐसी चीज आविष्कार करी है, इन्वेंट करी है, राइट, टेक्नोलॉजी वाइज कह सकते हैं, और हम चाह रहे हैं कि वो और कोई कॉपी ना करे। समझ रहे ना आप मेरी बात? हम चाह रहे हैं कि वो और कोई कॉपी ना करे, तो उसको कहते हैं पेटेंट्स। और कॉपीराइट्स में क्या डिफरेंस होता है बेटा? कॉपीराइट होता है जो रिटन वर्क में मिलता है। मान लीजिए हमने आज एक बुक लिखी है, ठीक है, इफ आई हैव रिटन सम बुक, उस केस में मैं क्या चाहूंगी कि मेरे को इस बुक के ऊपर सारे कॉपीराइट्स मिल जाएं, कि जो भी मैंने इसका कंटेंट लिखा है वो कोई और कॉपी ना कर पाए, तो उसको कहते हैं कॉपीराइट्स। बोलो क्लियर सबको? मैम सो यू आर टेलिंग दैट मैम कॉपीराइट इज इन रिटन फॉर्म। मैम बेसिकली मैं ये कहना चाहती फार्मा कंपनी से रिलेटेड कि गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है उनको कि वो मतलब सुनो, लाइसेंस अलग चीज हो गई। मेरी बात समझ रही हो बेटा? मैम माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, you are audible बेटा। Ma'am, basically you are saying, we'll discuss that point also। हाँ बताइए पहले। Basically you are saying that copyrights is in written form। रिटन फॉर्म तो बेटा दोनों चीजें हो गई। हाँ, कंटेंट राइटिंग जो होता है, बेसिकली कॉपी राइटिंग जो है वो कंटेंट राइटिंग होता है, लिखे हुए कामों पे। ठीक है, आपका पॉइंट सही है। अब आप बताइए ओमना क्या कह रही है? मैम मैं कह रही थी कि कोई भी जैसे कंपनी होती है उनका जैसे फार्मा मेडिकल्स की मैं ले लूं
तो उनके पास एक पेटेंट रहता है कि वो कोई बिना लाइसेंस के वो नहीं बेच सकते हैं वो चीज। वो लाइसेंस हो गया बेटा, पेटेंट उसको उस पे मिलेगा जो उसने मान लो जो फॉर्मूला बनाया है ना उस दवाई को बनाने के लिए। Yes, यू आर ma'am. गेटिंग माय पॉइंट, वो Yes, उस पे ma'am. होगा कि मेरी ये चीज कोई कॉपी ना करे। समझ रही हो ना? जैसे मान Yes, लो ma'am. आज मैंने कोई नई चीज इन्वेंट करी, राइट, आई हैव इन्वेंटेड कोई भी एक नई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी। मान लो मैंने एक ऐसे डस्टबिन इन्वेंट करे, सेंसर्ड डस्टबिन। उसमें क्या है, जैसे अभी हम लोग डस्टबिन में जब कूड़ा डालते हैं, दिस इज वन ऑफ माय कंसेप्ट इन माइंड। अभी तक हम क्या सोचते हैं, जब डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं तो कैसे डालते हैं, वी हैव टू प्रेस इट विद द लेग, राइट, एंड देन द लिड ओपन्स। अभी तक हम लोग डस्टबिन यही वाले यूज करते हैं ना बेटा, कि हम लोग उसको पैर से प्रेस करते हैं और उसका ढक्कन खुल जाता है, देन वी पुट इन दी गार्बेज एंड इट क्लोजेस व्हेन वी रिमूव द लेग, राइट। बट अब मान लो मेरा एक ऐसा कंसेप्ट है कि मैं ऐसा डस्टबिन बनाना चाह रही हूँ जो हम पैर ना लगाएं, जो कूड़े की स्मेल से ही खुल जाए, राइट, सेंसर्ड डस्टबिन, कि whenever the garbage goes close by the garbage collector, garbage उस टिन के पास जाए, जैसे ही मेरा कूड़ा वो उसकी बदबू से ही वो उसका कूड़े का ढक्कन खुल जाए, वो ऑटोमेटिकली हम उसपे कूड़ा डाल दें। मेरी चीज समझ आई बेटा सबको? यस मैम। बोलिए यस नो। मैम। हाँ, तो अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये मेरा जो आइडिया है ये कोई कॉपी ना करे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो उसपे मैंने क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया। क्या करा लिया? तो उसको ऑडिटर कैसे एग्जामिन करेगा? उसको ऑडिटर एग्जामिन करेगा सर्टिफिकेट से, क्योंकि जब आपको इसके पेटेंट्स के राइट मिले होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। तो वो जो ऑडिटर है आपका, वो उससे वेरीफाई कर लेगा कि हाँ इस कंपनी के पास इनके पेटेंट राइट्स हैं। ठीक है बेटा, और वो इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड हैं। बोलिए क्लियर? Yes, ma'am. अब आप वैल्यूएशन अभी छोड़ते जाइएगा। राइट नाउ वील बी ओनली डूइंग वेरिफिकेशन। आता है फिर कॉपीराइट्स। अब कॉपीराइट्स क्या होते हैं, जो हमने आपको बताया कंटेंट राइटिंग पे, राइट। तो इसमें भी वेरीफाइंग दी कॉपीराइट्स, ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द पब्लिशर। देखो इसलिए पब्लिशर आया ना यहाँ पे, इसमें कौन आया, पब्लिशर। उसको पता होना चाहिए कि हाँ इस कंपनी के पास इस कंटेंट के कॉपीराइट्स हैं, और वो कॉपीराइट्स का सर्टिफिकेट या अग्रीमेंट भी वो देख सकता है जो ऑडिटर और पब्लिशर के पास है। अब आते हैं हम लोग ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क्स कैन बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग द असाइनमेंट deed duly endorsed by the office of the registrar of trademarks. In case they have been purchased from others, the auditor should vouch the expenditures incurred in connection with their acquisition, registration fees, payment made to the designers, etc. अब ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया होगा, ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? It is approved by government, ma'am, for some certain products. और Not exactly, ma'am. yes, not exactly. होता क्या है? Exactly होता क्या है बेटा ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क बेसिकली हम कह सकते हैं लोगो और सिंबल। क्या कह मैम सकते एक हैं? साइन होता है जो Yes. एक प्रोडक्ट या कंपनी को बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली डिस्क्राइब कर करेक्ट। पाए Hallmark. और एकदम पहचान में आ Yes. जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई आप हमको ट्रेडमार्क के एग्जांपल दीजिए किसी कंपनी के। मैम HUL का ट्रेडमार्क। HUL का सबका, अभी इतने सारे ब्रांड्स चलते हैं तो सबका ट्रेडमार्क है। एडिडास का अपना है ना, रीबॉक का अपना है, नाइकी का अपना है, डोमिनोज पिज्जा का अपना ट्रेडमार्क है। अब सबको आइडिया लग गया? So logo and trademark both are almost same, right? क्या बेटा, क्या पूछ रहे हैं एक बार फिर से? Logo and trademark both are almost same, right? ऑलमोस्ट सेम। ठीक है बेटा, तो इसमें भी आपको ऑडिटर कैसे वेरिफिकेशन करता है कि आपने जिससे खरीदा है वो सारे एक्सपेंडिचर के वाउचर्स देखता है, उसके रजिस्ट्रेशन देखता है, उस सब के पेमेंट्स देखता है, तब वो वेरीफाइड होता है कि हाँ ये सारे ट्रेडमार्क्स इसी कंपनी के नाम पे हैं। तो ये थे सारे इंटैंजिबल एसेट्स का वैल्यू वेरिफिकेशन। अब हम आते हैं फिक्स्ड एसेट्स का वेरिफिकेशन। लैंड एंड बिल्डिंग हम देखेंगे कि जो भी हमने लैंड एंड बिल्डिंग ली है ऑडिटर एग्जामिन करेगा, वो सारे क्लाइंट के नाम पे ही है। तो क्या एग्जामिन करेगा कि सारी की सारी टाइटल डीड जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है रिगार्डिंग टू देयर ओनरशिप, वो सारे किसके नाम पे हैं? क्लाइंट के नाम पे ही हैं। और कोई भी एडिशन और सेल जो भी हुई है वो उसको क्लियरली देख लेगा। कभी कभी होता है हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, हमने उसका एक पार्ट सेल कर दिया, राइट, फिर हमने एक लैंड खरीदी, लैंड का एक टुकड़ा सेल कर दिया। तो वो जो ऑडिटर का काम है वो क्लियरली वेरीफाई करेगा, वो एकदम डीपली वेरीफाई करेगा कि जितने भी हमने ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज जो भी हैं, जितने भी हमने एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं, कब खरीदे हैं,
क्या हमने इस पे डेप्रिसिएशन सही लगाया है, क्या हमने इस पे जो डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो किया था वो कंटिन्यू किया भी है कि बीच में ही हमने छोड़ दिया है। ठीक है, जितना पार्ट आपने सेल किया है तो वो उसकी सेल रिसिप्ट देखती है, फिर वो देखता है आपने प्रॉफिट एंड लॉस उस एसेट पे सही लगा के दिखाया है कि नहीं दिखाया है। तो एन नंबर ऑफ चीजें ऑडिटर को वेरीफाई करनी पड़ती हैं लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड। क्लियर बेटा? अभी हम लोग को सिर्फ वेरिफिकेशन करना है, हमारे सिलेबस में वैल्यूएशन नहीं है, तो मैं जब आपको नोट्स भेजूंगी वो सिर्फ वेरिफिकेशन के ही भेजूंगी, सो डोंट वरी। नेक्स्ट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा मेरे को कोई बताए लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? मैम जो हम लोग मैम जैसे हमने कोई रेंट पे घर लिया Right. तो जब तक हम उसका रेंट दे रहे हैं तब तक वो एक टेम्परेरी ओनरशिप कह सकते हैं। तो कि जब रेंट तक और लीज में फर्क क्या हुआ बेटा? रेंट और लीज में क्या फर्क हुआ होगा? To taken on a rent for a long duration is known as lease. लॉन्ग ड्यूरेशन, ये वर्ड आपने बिल्कुल सही बोला है, लॉन्ग ड्यूरेशन। आपका नाम क्या है बेटा? Ma'am, Raj. राज। देखिए ओमना, आपका पॉइंट बिल्कुल सही था, लीज इज अ काइंड ऑफ रेंट, राइट, बट वी पे इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सपोज करिए कोई हमने लैंड है वो लीज पे ले रखी है 10 साल के लिए, बात समझ रहे हैं आप? तो आपने उसको 10 साल के लिए किराए पे एक तरीके से ले लिया है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? यस मैम। So that is basically leasehold property. अब आपको लग रहा है कि 10 साल बाद still you have to work on that land. Why? Because आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, ये फैक्ट्री सेटअप हो चुकी है, तो आपको वो लीज अपनी एक्सटेंड करानी पड़ती है। ठीक है, तो लीज का वेरिफिकेशन, द ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द लीज एग्रीमेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड ड्यूरेशन। इसीलिए इसमें वर्ड ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि कितने साल के लिए आपने वो लैंड लीज पे ली हुई है। The auditor should see the lease agreement is registered with the registrar and certificate testing to the validity of the same. How is he going to verify? He should see that lease agreement is registered with the registrar और certificate भी है उसकी validity के लिए कि हमने ये जो land है ये 10 साल के लिए लीज पे ली हुई है। Next, plant and machinery. Auditor should commence the process of verification by obtaining a schedule of plant and machinery certified by responsible officer of the concern. कई ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो इन सारे एसेट्स को, प्लांट एंड मशीनरी और इन सब की वैलिडिटी को वो करते हैं, रजिस्टर करते हैं कि ये जो है ये प्लांट एंड मशीनरी की एक एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम 10 साल है, राइट। तो ये सारी चीजें जो ऑडिटर है वो सर्टिफिकेट के साथ वेरीफाई करता है कि इनकी प्लांट एंड मशीनरी अप टू डेट है, ठीक है, और जो ऐसी भी होनी चाहिए कि जो वर्कर्स को हार्म ना करे। कई फर्म्स क्या करती है बेटा, ऐसे एसेट्स ले आती है जिसमें ह्यूमन लेबर बहुत लगता है और मशीन बस देखने की ही है। तो ऑडिटर ये सारी चीजें इंस्पेक्ट करता है कि जो भी आप मशीनरी, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं, दैट आर अप टू द मार्क। ये थे हमारे फिक्स्ड एसेट्स। अब हम आते हैं फ्लोटिंग एसेट्स पे। नंबर 1 इज कैश इन हैंड। The auditor should verify the cash in hand by actually counting it on the date of balance sheet. कैसे वेरीफाई करेगा? जितना आपने कैश इन हैंड तो बहुत छोटा सा अमाउंट होगा जो एक फर्म में कैशियर के पास होगा, राइट, एट द एंड ऑफ द डे, टू वेरीफाई कि जितना भी उसका कैश इन हैंड अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट में, एक्चुअली में कैश इन हैंड उतना ही है कैशियर के पास। Then we come to cash at bank. The auditor should verify cash at bank by comparing the balance shown in cash book and passbook. ये किसमें बनाते हैं? कैश बुक और पासबुक का बैलेंस। कौन सा स्टेटमेंट बनता है? आप लोग ने बनाया होगा बैंक रिकंसिलिएशन। बीआरएस होता है कि कोई और होता है? मैम यही होता है, बीआरएस, बैंक यही होता है। यस, दैट्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हम क्या बनाते हैं? हम स्टेटमेंट्स मैच करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्टेटमेंट, जो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक है, वो लास्ट में रिकंसाइल मतलब वेदर इट मैचेस विद द स्टेटमेंट देयर इन द पासबुक। तो ये जो बैंक ऑडिटर है ये कैसे वेरीफाई करेगा कि जो कैश बैंक में है वो सही पड़ा है एज पर द बैलेंस शीट डेट? बाय वेरीफाइंग द कैश एट बैंक shown in the passbook and the cash book. Clear beta? In verifying the bank balance, the auditor should also prepare BRS to ascertain the correct position. Absolutely clear na beta? Yes ma'am. Next आता है stock in trade. What do we mean by stock in trade? मैम जितना भी स्टॉक या इक्विपमेंट्स हमारे बिजनेस के लिए होते हैं जो हम स्टॉक करके रखते हैं इन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, राइट, इसमें लेकिन हम इक्विपमेंट्स नहीं लेंगे बेटा। स्टॉक इन ट्रेड मींस जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, जो हमारा मेन काम है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस कपड़ों का है तो वहां पे स्टॉक किसका हो जाएगा? क्लोथ्स का।
Ma'am, what about on services? Can we include services in this one? Not at all, not at all. Services का कभी भी आप स्टॉक नहीं कर सकते। क्या मैं पहले ही से ऐसे खाली लेक्चर्स बना के रख सकती हूँ? कोई सामने पढ़ने वाला नहीं है। Possible. It is? मैम Come again. सर्विसेज हो सकता। सर्विसेज नहीं हो सकता। क्या डॉक्टर पहले ही से किसी को भी कंसल्टेशन दे सकता है बिना बीमारी के? नो तो मैम। सर्विसेज का नहीं, तो सर्विसेज का कभी भी हम स्टॉक नहीं कर सकते। स्टॉक बेसिकली हम करते हैं गुड्स का, और इन ट्रेड का यहाँ पे मतलब है जिसका आप ट्रेड कर रहे हैं, राइट? जिसका आप अभी बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व हैं। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जिसका अभी आप बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व हैं। ट्रेडिंग मतलब जिसकी आप ट्रेडिंग कभी कर रहे हैं प्रैक्टिकली, राइट? तो it is practically impossible for auditor to physically verify each item of the stock in hand because of various reasons. बिल्कुल सही बात कह रहा है ऑडिटर के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि स्टॉक इन हैंड वो मैच कर सके, राइट? क्योंकि वो जाके काउंटिंग तो करेगा नहीं। नंबर वन, लिमिटेड टाइम और लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। Therefore, the auditor has to rely upon test check to ascertain the accuracy of stock in trade. Good morning. Who's this? Who is this? चलो we move on stock in trade. तो हमको टेस्ट चेक के ऊपर ऑडिटर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। He only has to rely upon the test check. वो एक रैंडम टेस्ट चेक कर लेता है कि उसका स्टॉक सही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अदरवाइज उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है बेटा। अब देखो डिफरेंट इसके पास वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। हालांकि हम लोग को वैल्यूएशन करना नहीं है, बट आई विल टेल यू यूनिट कॉस्ट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, लीफो, फीफो, हीफो, राइट? वो किसी भी मेथड के हिसाब से चेक करके अपना एसरटेन कर सकता है कि जो यहाँ पे बैलेंस शीट में स्टॉक इन ट्रेड दिखाया जा रहा है वो सही भी है कि नहीं है। देन लास्ट टॉपिक वी कम ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? मैम प्रांजल। हाँ बताइए प्रांजल। मैम स्टॉक इन ट्रेड में क्या मतलब स्टॉक करके रखते जो हम लोग को बिजनेस से रिलेटेड है? मैम एक बार फिर से बता दीजिए, इसमें डाउट है। बेटा इसका ये मतलब हुआ कि आपका कितना अंडरलाइन स्टॉक है। अंडरलाइन स्टॉक मतलब कितना स्टॉक आपके पास ओपनिंग में आया, राइट? कितना स्टॉक आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया एंड कितना स्टॉक आपने सेल किया, राइट? हमारे पास स्टॉक इन हैंड मतलब अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? जिस दिन आपका 31 दिसंबर को मान लीजिए आपने क्लोजिंग स्टॉक अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, 31 दिसंबर को आपने बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया 40,000। मेरी बात समझना बेटा। अब वो कैसे वेरीफाई करेगा कि ये जो 40,000 का आपने स्टॉक दिखाया है ये सही है कि नहीं है? वो कैसे वेरीफाई करेगा बेटा? वो रैंडमली एक टेस्ट चेक कर सकता है। मान लो उसने लीफो मेथड निकाल लिया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, थोड़ा बहुत उसने रैंडम चेक कर लिया, क्योंकि इसके चेकिंग के लिए उसको पूरा ओपनिंग स्टॉक देखना पड़ेगा। फिर उसको आपने ड्यूरिंग ईयर कितना माल खरीदा है, राइट? तो उसके बाद उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो कोई भी इसमें से रैंडम चेक मेथड निकाल के अपना स्टॉक वेरीफाई कर सकता है। क्लियर बेटा? यस मैम। ये होता है बेटा। अब हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे करेगा? द ऑडिटर शुड वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अप्लाइंग टेस्ट। एग्जांपल, फाइनेंशियल जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर शुड बी कंसल्टेड फॉर चेकिंग द मार्केट रेट्स। कि आपने किस डेट पे इन्वेस्ट करा था, और आप विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल जर्नल्स या फाइनेंशियल मैगजीन्स की हेल्प से, न्यूज़पेपर की हेल्प से आप देख सकते हो कि इसका इन्वेस्टमेंट आज दिन तक कितना होगा। तो क्या उसने सेम वैल्यू दिखाई है मार्केट वैल्यू, कि उसने अभी भी कॉस्ट पे दिखाए हैं? मेरी बात समझ रहे हो? कैसे ऑडिटर वैल्यूएट करेगा? ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स आज से 2 साल पहले कर रखी थी उसकी आज की डेट में वैल्यू है क्या? और अगर उसकी ये वैल्यू है तो क्या आपने उसको इसी वैल्यू में दिखाया है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज अपीयर एट देयर मार्केट वैल्यू इन दी बैलेंस शीट। इसी प्रकार से सिक्योरिटीज देमसेल्व्स मे बी कंसल्टेड। जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है हो सकता है हम उनको भी कंसल्ट कर लें फॉर चेकिंग दी कॉस्ट। The auditor should verify the amount of interest, और इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड्स have already been declared before the date of balance sheet should also be taken as outstanding ones. देखिए हम लोग अकाउंट जब पढ़ते हैं तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस सब कुछ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अच्छा, हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं? कोई कैन एनीबडी टेल मी? मैम पार्डन, क्या बोला आपने? Why do we show outstanding expenses and prepaid expenses in the balance sheet?
मैम आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी है कि जो हमें पे करना है, परफेक्ट, और perfect. एसेट जो हमने प्रीपेड बहुत मतलब पहले से ही पे कर दिया है। करेक्ट, बट व्हाई आर वी शोइंग दैट इन द बैलेंस शीट ना? मैम बिकॉज आउटस्टैंडिंग है ना, तो पे करना है हमें, इसलिए लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो करते हैं। लाइबिलिटी साइड में, और हम इसी साल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने वो काम इसी साल किया है। मेरी बात समझ रहे हो? हमने वो काम इसी साल किया है जिसकी पेमेंट अभी हमने नहीं करी है। पेमेंट भले हम अगले साल करें, लेकिन वो काम तो इसी साल हुआ है ना, तो उसका आउटस्टैंडिंग भी हम इसी साल दिखाएंगे टू नो द ट्रू फिगर्स, राइट? ऐसा नहीं कर सकते हम, अगर एक एम्प्लॉई है, हमने उसकी सैलरी ड्यू कर रखी है, राइट, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, पर हम इसी साल क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उसने काम जो किया है वो इसी साल किया है, इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में दिखाते हैं कि अभी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमको उसको और देना है, और इसीलिए हम प्रीपेड एसेट में दिखाते हैं कि हम पहले ही पैसा दे चुके हैं, भले वो मेरा काम हुआ है या नहीं हुआ है। करेक्ट? अब उसके बाद हम लोग आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज में। हम लोग को सबका वेरिफिकेशन करना है, हम लोग को एसेट्स का भी वेरिफिकेशन करना है, हम लोग को लाइबिलिटीज का भी वेरिफिकेशन करना है। हम लोग एक इसमें कैपिटल पढ़ लेते हैं पहले, फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है? वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज में नंबर 1 इज कैपिटल। इन केस ऑफ फर्म, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कैपिटल विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड, पासबुक एंड कैश बुक। In case of company, auditor should examine the memorandum of association to verify the information as to the maximum capital the company is authorized to raise. अच्छा, memorandum of association में कौन सा clause ऐसा होता है जो capital के बारे में बताता है? How many clauses are there in the memorandum of association? Not audible. Tell me, कितने क्लॉजेस होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? मैम 6 क्लॉजेस होते हैं। परफेक्ट। नंबर 1 नेम क्लॉज, नंबर 2 लाइबिलिटी क्लॉज, नंबर 3 कैपिटल क्लॉज, नंबर 4 ऑब्जेक्ट क्लॉज, नंबर 5 एसोसिएटिव क्लॉज, और एक और था कोई, चलो रजिस्ट्रेशन क्लॉज। यस, तो कैपिटल क्लॉज को क्या बताता है? कैपिटल क्लॉज हमको बताता है कि कंपनी में मैक्सिमम में कितना कैपिटल हो सकता है जिससे अपनी कंपनी ऑथराइज आप करा सकते हो। तो ऑडिटर चेक करता है आपका मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज कि कहीं आपका जो ऑथराइज कैपिटल, मान लीजिए आपने 1 करोड़ मान रखा था, तो ऐसा तो नहीं है आपने बैलेंस शीट में उससे भी ज्यादा दिखा के रखा है, क्योंकि दैट विल बी समथिंग अगेंस्ट क्लॉजेस एंड इट विल बी नल एंड वॉइड। करेक्ट बेटा? He should also ascertain the amount of called up capital. अब उसमें कितने सारी वो होते थे? सबसे पहले कौन सा कैपिटल होता था? सबसे पहले होता था हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल कंपनीज में, ठीक है? ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद कौन सा होता था? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप, कॉल्ड अप के बाद पेड अप। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, उसमें से जनरल पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है? मान लीजिए ऑथराइज तो हमने 1 करोड़ लिखा था, ठीक है? अभी हम उतना कॉल नहीं कर रहे हैं। ऑथराइज के बाद एक एप्लीकेशन अमाउंट आपने जो कॉल किया है वो 70 लाख रुपए है। 70 में जनरल पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है? मान लीजिए 40 लाख सब्सक्राइब कर दिया। अब 40 लाख भी कैसे बटा होता है? एप्लीकेशन में बटा होता है, अलॉटमेंट में बटा होता है, और कॉल्स में बटा होता है। ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब इसमें से हम अभी सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कॉल कर रहे हैं, तो वो होता है कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप में से मान लीजिए आप ये 6 रुपए पर शेयर कॉल कर रहे हो, लेकिन पेड अप लोगों ने दिए कितने? सिर्फ 4 रुपए दिए। तो कंपनी का जो ऑडिटर है वो ये सारी चीजें डिटेल में वेरीफाई करेगा कि कितने आपने अमाउंट कॉल अप किया था हर शेयर के ऊपर, और कितने आपने शेयर्स फुली अलॉट किए हैं। ये सारे सोर्सेज देखेगा, बोनस शेयर के, कैपिटलाइजेशन देखेगा, रिजर्व देखेगा, सब कुछ देखेगा। सो कंपनी अकाउंट में उसके लिए कैपिटल का वेरिफिकेशन होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। forfeited shares, what are forfeited shares? ये तो आप लोग को फटाफट से बताना चाहिए बेटा। यस मैम, दैट कांट बी मैम, जो वापस ना मिल सके, फॉरफिट हो गया मैम। फॉरफिट हो गया। क्यों फॉरफिट होता है बेटा? कंपनी क्यों फॉरफीचर करती है शेयर्स का? When Non-payment of installment. मैम insolvency में
ना, शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पा रहा है, समझ रहे मेरी बात। शेयर होल्डर को मान लीजिए किसी के पास ए शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर है, ठीक है, 100 शेयर और एक शेयर की कीमत है मान लीजिए 20 रुपए, तो टोटल पैसे कितने हो गए, 2000 हो गए। लेकिन इसमें से वो ऑलरेडी 1400 रुपए दे चुका है, अब बचते हैं 600 रुपए जो कंपनी बार बार कॉल कर रही है। कंपनी ने पहला लेटर भेजा, उसने बोला 600 रुपए दीजिए, उसने नहीं भेजा 14 दिन के अंदर, फिर कंपनी आखिरी शायद दूसरा लेटर भेजती है, अभी मेरा भी इन सबका रिविजन नहीं है, जितना मेरे को याद है कंपनी फिर उसको दूसरा लेटर भेजती है कि आप इतने पर्टिकुलर डेज में जो है या आप अपना 600 का बैलेंस अमाउंट भेजिए, और अगर वो बैलेंस अमाउंट नहीं भेज पाता है तो कंपनी उसका शेयर फॉरफीचर कर लेती है, मतलब जब्त कर लेती है। उस केस में ये 1400 रुपए कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब ये कंपनी शेयर री इशू करती है, जो कंपनी ने शेयर फॉरफीट किए ना बेटा, कंपनी ये वाला शेयर री इशू करती है। अब री इशू कर सकती है एट अ डिस्काउंट, एट अ प्रीमियम, एट पार वैल्यू। अब ये 600 का शेयर कंपनी के लिए जो है, ये कंपनी इस प्राइस पे भी इशू कर सकती है, इससे कम पे भी कर सकती है, इससे ज्यादा पे भी कर सकती है। इसको कहते हैं फॉरफीचर। When the shareholder is unable to pay the price of the share, the company forfeits the share. The company forfeits the share. Clear बेटा? Yes, ma'am. अभी हम लोगों ने कैपिटल का पढ़ा है, अभी इसमें we have to go a long way, अभी liabilities हमारी बहुत बची है, so we'll be doing the remaining things on the next turn, जब भी होगा हमारा। आप लोग के अकॉर्डिंग आप लोग कह रहे हो